So our topic for today is plasma protein, and our learning objective will be, at the end of the session, you will be able to understand different forms of plasma protein. Plasma protein कितने तरह के होते हैं, और synthesis of plasma protein. We won't go into detail of the synthesis and method of separation. Just एक slide शायद होगी. Synthesis of plasma protein, and then the most important topic, discuss the function of different plasma proteins. So in the last turn, we talked about that plasma consisted of mainly 91% water, and then 7% was the plasma protein, and the rest was dissolved solute. So today we'll be talking about the important component of plasma, that is the plasma protein, and the different function. Plasma protein is very important, so we'll discuss about it. So this you already know that plasma consists of water, protein and various electrolyte. Water is the major constituent, 91% water होता है उसमें, 7% plasma protein होते हैं, और rest 1 to 2% dissolved solutes and electrolytes and gases होते हैं. तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, अगर ब्लड के रेफरेंस से बोलें तो 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन. ठीक है. So this diagram again show you the component of plasma proteins. Basically you have 7% of the total plasma as plasma protein, water is almost 92%, and other solute is 1%. So in the plasma protein you have three major factions: albumin, globulin and fibrinogen. And apart from that, there are certain other proteins which are less than 1%, but the major proteins are albumin, globulin and fibrinogen. Albumin is 60%, globulin is 35% and fibrinogen is 4%. So these are the major plasma proteins. So you have albumin, which is around 3.5 to 5 gram per deciliter. Then the second most common plasma protein is globulin. Globulin is divided into three categories: alpha globulin, beta globulin and gamma globulin. Okay. And then you have fibrinogen, which is very less as compared to albumin and globulin. You have 200 to 400 milligram per deciliter of fibrinogen. And fibrinogen was the one, अगर आपको याद होगा तो हमने ये बात की थी, प्लाज्मा और सीरम में इसी का फर्क है. सीरम में फिब्रिनोजन नहीं होता, प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है. बाकी एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होता है सीरम में, प्लाज्मा में, दोनों में, बट सीरम में फिब्रिनोजन नहीं होता. ठीक है. सो दिस इज basic overview of the plasma protein. Albumin 3.5 to 5 gram per deciliter, globulin is 2.5 to 3.5 and fibrinogen. Now coming to formation of plasma protein. Plasma protein बनते कहाँ हैं? All the plasma proteins except gamma globulins. Globulin के मैंने बताया ना, तीन कैटेगरी होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. तो एक्सेप्ट द गामा ग्लोबुलिन्स, बाकी सारे प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में बनते हैं. गामा ग्लोबुलिन बनता है प्लाज्मा सेल में. ठीक है. प्लाज्मा सेल क्या होता है? किसी को पता है प्लाज्मा सेल क्या होता है? व्हाट इज अ प्लाज्मा सेल? बताओ जल्दी जल्दी चैट में उंगलियां. प्लाज्मा सेल्स क्या होता है? जल्दी, वेटिंग फॉर योर रिस्पांस. प्लाज्मा सेल क्या होते हैं? सर बी लिम्फोसाइट. Yes, everyone is right. They are modified lymphocytes. Basically, B lymphocyte जो सबने कहा है, बिल्कुल सही कहा है. ठीक है. So plasma cells are modified lymphocytes, basically B lymphocytes, and they synthesize gamma globulins. And gamma globulins are nothing but what you commonly call as antibodies. ठीक है. तो ऑलमोस्ट सारे प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में बनते हैं, except for gamma globulin, which are secreted by the plasma cells, synthesized and secreted by the plasma cells. ठीक है. एंड जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है उनके कैरेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ होते हैं. हाफ लाइफ होते हैं मतलब वो एक बार बन जाते हैं तो ऐसा नहीं जिंदगी भर के लिए रहते हैं. दे कीप ऑन डिकेइंग.
जैसे एल्बुमिन का हाफ लाइफ 20 डेज है, तो हाफ लाइफ मतलब जितना बनेगा 20 दिन में उसका हाफ हो जाएगा, फर्दर 20 दिन में उसका भी हाफ हो जाएगा। सो दे कीप ऑन डिग्रेडिंग। एक बार बन गए तो हमेशा आपकी बॉडी में रहेंगे ऐसा नहीं है, दे कीप ऑन डिग्रेडिंग। सो दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ। सबके अपने अपने हाफ लाइफ होते हैं, एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ नहीं होता कि एल्बुमिन का जैसे 20 दिन है तो ग्लोबुलिन का कुछ और होगा, फिब्रिनोजन का कुछ और होगा। एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या मतलब कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो पूरा प्लेन प्रोटीन नहीं होते, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन which are attached to carbohydrate chain, so they are known as glycoproteins. Okay, now प्लाज्मा प्रोटीन सेपरेट कैसे करते हैं? कई सारे टेक्निक होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल उन सब टेक्निक में नहीं जाना है। सॉल्टिंग आउट टेक्निक होती है और इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। सॉल्टिंग आउट का मतलब कि उसमें एक सॉल्ट डालते हैं, कोई केमिकल डालते हैं, मोस्ट कॉमनली सोडियम या अमोनियम सल्फेट डालते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द depending upon the power by which this plasma protein they combine with this chemical, they are separated. Affinity of the plasma protein for these chemicals, ठीक है, सोडियम या अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो सोडियम अमोनियम सल्फेट किसी पर्टिकुलर प्रोटीन से ज्यादा कंबाइन करता है, किसी से कम करता है, तो अलग अलग उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है, जम जाते हैं, उसको सॉल्टिंग आउट कहते हैं। ठीक है, जो जैसे सपोज सोडियम अमोनियम सल्फेट डालेंगे वो ग्लोबुलिन से ज्यादा कंबाइन करेगा तो ग्लोबुलिन सारा कंबाइन हो जाएगा, बचेगा एल्बुमिन और फिब्रिनोजन। बाद में ग्लोबुलिन को उससे अमोनियम सल्फेट से अलग कर लेंगे, तो इसको सॉल्टिंग आउट कहते हैं। ठीक है, तो देयर कैन बी थ्रू सॉल्टिंग आउट दे कैन बी रिमूव प्लाज्मा प्रोटीन सेपरेटेड। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। Now these plasma proteins, albumin, globulins or fibrinogen, they are all charged substance। क्या होते हैं? फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, these are all charged substance, albumin, globulin and fibrinogen। ठीक है, सबके चार्जेस अलग हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्ज व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू देम। ठीक है, आप एक प्लाज्मा प्रोटीन का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्ज दे गेट सेपरेटेड। ठीक है, जो ज्यादा नेगेटिव होगा और ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, जो कम नेगेटिव होगा वो बीच में आएगा। सो दे गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट। जब आप प्लाज्मा को एक चार्ज सब्सटेंस पे रन करते हैं, ठीक है, एक प्लेट होती है चार्ज प्लेट, उस प्लेट के एक तरफ पॉजिटिव एंड होगा, एक तरफ नेगेटिव एंड होगा। उसमें जब आपने प्लाज्मा को रन किया, ये प्लाज्मा को फ्लो करवाया, तो ये प्रोटीन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज एंड देयर मॉलिक्यूलर मास दे गेट सेपरेटेड। कोई ज्यादा अट्रैक्टेड होगा पॉजिटिव पोल की तरफ, कोई कम अट्रैक्टेड होगा तो ज्यादा वाला पॉजिटिव के पास जाके जमा हो जाएगा बीच में। इस तरह से ये सेपरेट होते हैं, जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये सपोज इस तरह से बन जाता है। एल्बुमिन जो सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होता है और मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज्यादा होता है एल्बुमिन का एज कम्पेयर टू ऑल अदर, तो एल्बुमिन सबसे पहले जाके नेगेटिव पॉजिटिव पोल के पास जाके जमा हो जाता है, फिर अल्फा 1, फिर अल्फा 2, फिर बीटा और फिर गामा ग्लोबुलिन, उसके बाद फिब्रिनोजन आता है। इस तरह से सेपरेशन हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट टू देम, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ कमिंग टू एल्बुमिन। एल्बुमिन इज अ मेजर प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन प्लाज्मा। ये हमने अभी देख लिया कि जो ह्यूमन प्लाज्मा है उसका मेजर प्रोटीन एल्बुमिन होता है। नॉर्मल लेवल एल्बुमिन का 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, और ये 60% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जितने प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं टोटल जो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और कुछ 1% कुछ और भी होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 60% जो है वो एल्बुमिन होता है। ठीक है, और सारा एल्बुमिन जो है वो प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होता है। आपके बॉडी में जितना एल्बुमिन है उसका सिर्फ 40% प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, रेस्ट 60% इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। वो कैपिलरीज और आर्टरीज से बाहर निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है।
So almost 40% of the albumin remains in the plasma. जितना भी प्रोड्यूस हुआ, लीवर में प्रोड्यूस हुआ, पहले ब्लड में गया, फिर 40% of the total albumin produced remains in the plasma and 60% present in the extracellular space, जहां उसका एक अलग फंक्शन होता है. ठीक है. अगर पर डे के हिसाब से लिया जाए तो लीवर प्रोड्यूस 12 ग्राम ऑफ एल्बुमिन पर डे. Now coming to the functions of plasma protein, जिसमें सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे एल्बुमिन का. ठीक है, क्योंकि अभी हम एल्बुमिन पढ़ रहे हैं तो एल्बुमिन का फंक्शन लेंगे. The most important function of albumin is to create a pressure which is known as the colloid osmotic pressure. ठीक है, ये एक प्रेशर होता है जो डिसॉल्व एल्बुमिन, प्लाज्मा में जो एल्बुमिन डिसॉल्व है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है. इसको कहते हैं colloid osmotic pressure of the plasma. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 12th में वगैरह में कि ओस्मोटिक एक प्रेशर होता है कि जितना सॉल्यूट होता है एक सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूट जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, या तो सॉलिड बाहर निकलने की कोशिश करेगा सॉल्यूशन से या अंदर आने की कोशिश करेगा. तो दो सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दे क्रिएट अ प्रेशर, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. तो यही वो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एल्बुमिन जो है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व है, इट क्रिएट्स अ प्रेशर व्हिच इज नोन एज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. और टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कैपिलरीज में होता है या वेसल में होता है वो 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. उसका 80% एल्बुमिन प्रोवाइड करता है. ठीक है, एक आर्टरी और कैपिलरी जो भी कह लें ब्लड वेसल के अंदर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल टर्म्स में ब्लड वेसल के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं, ब्लड के साथ जो सॉल्यूट्स फ्लो कर रहे हैं वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उनको कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. तो टोटल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड अ ब्लड वेसल इज 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड 80% ऑफ दिस इज कंट्रीब्यूटेड बाय एल्बुमिन. ठीक है, इस कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का फंक्शन क्या है? ये ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है. अगर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर में वेरिएशन आएगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है वेसल्स में उसमें भी वेरिएशन आएगा, या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा या ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, अगर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, बाहर से फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी. और अगर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो अंदर से फ्लूइड बाहर चला जाएगा, ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा. ठीक है, तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है इनसाइड अ वेसल. ठीक है, अगर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर घट रहा है तो इसका मतलब अंदर जो है सॉल्वेंट ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द वेसल, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. उसी तरह अगर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वाटर इज लेस इनसाइड द वेसल, सॉल्यूट ज्यादा हो गया, तो बाहर से वाटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से water will move inside the vessel and then the blood volume will increase. So कोलॉइड ऑस्मोटिक pressure maintains the blood volume. समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया, you can write in the chat or you can say that sir kindly explain it again. उसमें कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज से इट कि समझ में नहीं आया, काइंडली एक्सप्लेन इट अगेन, तो वो फिर से समझा दिया जाएगा. Okay, so we'll move. ठीक है, ये अलग अलग प्लाज्मा प्रोटीन का कितना रोल है ऑस्मोटिक प्रेशर में ये दिखाया गया है. टोटल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ वेसल इज 28. उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर एल्बुमिन होता है जो कि 21.8 मिलीमीटर ऑफ Hg का कंट्रीब्यूट करता है. ग्लोबुलिन 6 होता है, फिब्रिनोजन 0.2 होता है. ठीक है, ये टोटल जो प्रेशर है इनसाइड वेसल उसका अलग अलग ब्रेक डाउन करके दिखाया गया है कि इस प्रोटीन का कितना रोल है. ठीक है, सो 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द इफेक्टिव कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड अ वेसल. उसमें एल्बुमिन 21.8 रोल प्ले करता है, ग्लोबुलिन 6 और फिब्रिनोजन 0.2. Now this diagram it depicts different pressure acting on a vessel. ठीक है, ये आपको बाद में डिटेल में इडिमा पढ़ाया जाएगा. शायद प्रोफेसर डॉक्टर एजाज जो जिन्होंने कल आपकी क्लास ली थी वो शायद लेटर ऑन आपको ये पढ़ाएंगे इडिमा में.
तो यहाँ पे जस्ट फॉर से कि एक ब्लड वेसल पे कितने सारे प्रेशर एक्ट कर रहे होते हैं, 4 प्रेशर एक्ट कर रहे होते हैं ब्लड वेसल पे, ठीक है। पहला जो है, ठीक है, सो फर्स्ट प्रेशर इज द कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरी प्रेशर क्या है? इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड मूविंग इनसाइड द वेसल, ठीक है। जो तो वो प्रेशर क्या करता है, दैट टेंड्स टू फोर्स द फ्लूइड आउट थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन। कैपिलरी प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और वाटर का प्रेशर जो ब्लड वेसल के अंदर है, यानी ब्लड के साथ वाटर मूव कर रहा है। अब अंदर वाटर है तो वाटर विल ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, इसे कहते हैं कैपिलरी प्रेशर। सो कैपिलरी प्रेशर इज एन आउटसाइड प्रेशर। यहां आप देखेंगे, ठीक है। सो कैपिलरी प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द ब्लड वेसल दैट टेंड्स टू मेक द फ्लूइड आउट, मूव आउट ऑफ द वेसल, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है वेसल पे आपके कैपिलरी प्रेशर, ये है, ये एरो बाहर दिखा रहा है, मतलब दिस टेंड टू मूव द फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल, ठीक है। सो दिस इज द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। दूसरा प्रेशर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ये जो है, ये बाहर जो फ्लूइड है ब्लड वेसल के, ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर जो फ्लूइड है वो कोशिश करेंगे ब्लड वेसल के अंदर जाना, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर कहलाता है, ठीक है, क्लियर। तीसरा प्रेशर इज द प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जो एल्बुमिन जो भी हमने अभी पढ़ा, क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट। तो ये क्या करता है क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इट विल ट्राई टू मूव फ्लूइड इनसाइड, क्योंकि क्लोराइड है ना, सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट ज्यादा रहेगा तो बाहर से फ्लूइड अंदर आने की कोशिश करेगा टू नॉर्मलाइज द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ठीक है। सो दिस क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सॉल्यूट की वजह से जो प्रेशर बन रहा है, इट विल ट्राई टू मूव द फ्लूइड इनसाइड, बाहर से फ्लूइड को कोशिश करेगा वो अंदर आ जाए, क्योंकि सॉल्यूट अंदर है, तो सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा वो मूव कोशिश करेगा, वो मूव कराएगा फ्लूइड को अंदर, ठीक है। उसी तरह एक इंटरस्टिशियल क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी बाहर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में भी कुछ सॉल्यूट्स होंगे। ये भी हमने बात करी थी कि जो एल्बुमिन है वो 60% अंदर रहता है और 40% बाहर रहता है, तो ये बाहर भी कुछ सॉल्यूट्स होंगे, दे विल ट्राई टू मूव द वाटर आउटसाइड। तो ये 4 फोर्सेस हैं, इनको कहते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस, ठीक है। अर्नेस्ट स्टार्लिंग वाज अ फिजियोलॉजिस्ट जिसने ये फोर्स को पता किया था। तो ये 4 फोर्स जो है दे आर नोन एज स्टार्लिंग फोर्सेस, और ये 4 फोर्स डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, यानी फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर जाएगा या फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा, ठीक है। सो इंटरप्ले ऑफ दिस 4 फोर्सेस व्हिच आर नोन एज स्टार्लिंग फोर्सेस डिटरमाइंस योर ब्लड वॉल्यूम, कि वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक्सक्यूज मी सर, नहीं समझ में आई ये बात तो बता दो, फिर से समझा दिया जाएगा, बहुत सिंपल है। These are 4 forces, two of the force they try to move the fluid inside and 2 forces they try to move the fluid outside, बस यही है। जो प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है, they cause the movement of the fluid inside, and the capillary pressure, interstitial fluid chloride osmotic pressure, they try to move the fluid outside. ठीक है, ये रहने दीजिए, चलिए ये अभी आप लोगों को जरूरत नहीं। ना इन फोर्सेस के इंटरप्ले से होता क्या है? इडेमा इज अ कंडीशन where excess fluid accumulates in the extracellular space, यानी ब्लड वेसल के अंदर से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, and these fluid they accumulates in the extracellular space, इनको इडेमा बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन देयर इज accumulation of the fluid, ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकल रहा है and they get accumulated in the extracellular space, ठीक है, ठीक है। So whenever there is accumulation of the excess fluid in the extracellular space, यानी कि extracellular space में solute ज्यादा हो गए, तो they will try to move the fluid from the vessel,
ठीक है, वेसल से जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जमा हो जाएगा, सो दैट इज इडेमा व्हेन एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेट्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, सो द एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज एक्सेसिव कैपिलरी फ्लूइड फिल्ट्रेशन, यानी कैपिलरी से फ्लूइड बाहर हो फिल्टर होके आए और जमा हो जाए। ठीक है, जिसको इडेमा कहते हैं। नॉर्मली बहुत आप लोगों को अगर कोई पेशेंट दिखेगा किडनी प्रॉब्लम का, रीनल प्रॉब्लम का, तो उसमें आप देखेंगे उसके पैर फूले हुए होंगे। ठीक है, या हार्ट प्रॉब्लम में भी होता है, हाइपरटेंशन, जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनमें देखेंगे आप पैर फूले हुए से लगते हैं कि पैर में फ्लूइड जमा हो गया, वो इडेमा होता है कि एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेट कर जा रही है एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में, एंड दैट इज नोन एज इडेमा। Now the second important function of albumin is transport. ये पहला function था to create the colloid osmotic pressure. Second function है transport function. ठीक है, albumin बहुत सारे substance को bind करता है अपने साथ, जैसे कि कितने सारे हार्मोन होते हैं, थायरोक्सिन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, मेटल लाइक कैल्शियम, कॉपर, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जब रेड ब्लड सेल टूटता है, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का, तो ये सब्सटेंस बनता है बिलिरुबिन। तो इसको बॉडी से निकालना होता है, वो एल्बुमिन के साथ कंबाइंड होकर जाता है। अगर एक्सेस बन गया या नहीं निकला तो जॉन्डिस हो जाती है, ये लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, जॉन्डिस हमें पढ़ना है। तो बहुत सारे सब्सटेंस को बॉडी से एक्सक्रीट करने में बिलिरुबिन इसका एल्बुमिन का रोल है, कि एल्बुमिन इन सब्सटेंस के साथ बाइंड कर जाता है और फिर इन्हें ब्लड के थ्रू फ्लो करा के बाहर निकाल देता है। ठीक है, वेरियस हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर के साथ बाइंड नहीं करते। हाइड्रो refers to water and phobic refers to fear. So hydrophobic means those who don't like water, they don't have affinity for water. ठीक है, तो जैसे फैट्स हो गए, फैट्स दे डोंट डिसॉल्व इन वाटर, सो दे आर हाइड्रोफोबिक। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो उनको कैरी कैसे किया जाए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर वो एल्बुमिन से बाइंड करते हैं, एंड देन एल्बुमिन they carry these substance along with them while flowing in the blood vessel or plasma. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फंक्शन भी है। जितने भी जैसे हार्मोन एक जगह प्रोड्यूस हुआ, थायरोक्सिन मान लो आपके थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस हुए, अब उसको थायराइड ग्लैंड पे एक्ट नहीं करना, उनको बॉडी के डिफरेंट एरियाज में एक्ट करना है। सो दिस थायरोक्सिन विल बाइंड विद एल्बुमिन एंड देन दे मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर देयर एक्शन विल हैपन। Then the third important function of albumin is buffering function. ये हमने पढ़ा था पिछले टर्न में कि one of the important function of the blood is it act as the buffer. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस करता है ना, उसमें पढ़ा था कि हमने पीएच मेंटेन करता है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज नोन एज buffering. So one of the important function of blood is they maintain pH or they maintain the homeostasis of the internal body environment. तो एल्बुमिन एक्ट एज अ बफर। ठीक है, एंड व्हाट इज द बफर, ये हमने लास्ट टाइम किया था। बफर इज अ सब्सटेंस दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच। कोई भी सब्सटेंस जो पीएच को चेंज होने नहीं देता है उसे बफर बोलते हैं। ठीक है, सो एल्बुमिन एक बहुत ही अच्छा बफर है। ठीक है, ये बॉडी में ब्लड के पीएच को चेंज होने नहीं देता। ठीक है, अगर एसिड आ गया ज्यादा तो एसिड विल ट्राई टू bring the pH down. Albumin will combine with that acid and neutralize the effect of that acid. उसी तरह ये बेस के साथ भी combine कर सकता है। अगर कोई बेस आपके ब्लड में ज्यादा आ गया, it will try to bring the pH up. Albumin will combine with that base and neutralize the effect of that base. Albumin is a very good buffering agent and it has the maximum buffering capacity among all proteins. आपके बॉडी में जितने प्रोटीन्स हैं उनमें एल्बुमिन का मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी होती है, एल्बुमिन की। ठीक है, क्लियर। एंड द फोर्थ फंक्शन इज न्यूट्रिशन फंक्शन। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है उसका प्रोटीन है तो न्यूट्रिशन फंक्शन भी होगा। आप जो एग लेते हैं, एग में मेन प्रोटीन क्या होती है, एल्बुमिन होती है। ठीक है, एग वाइट, तो एल्बुमिन इज ऑल्सो हैज अ न्यूट्रिटिव फंक्शन, न्यूट्रिशन उसका रोल है। ठीक है, एल्बुमिन कैन बी टेकन अप बाय सेल्स। ठीक है, एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में भी इसका रोल है। एल्बुमिन इज अ वेरी गुड न्यूट्रिटिव एजेंट। एक प्रोटीन इज बेसिकली द एल्बुमिन। ठीक है, सो ऑल टिश्यू कैन टेक अप एल्बुमिन एंड ब्रेक डाउन टू अमाइनो एसिड एंड देन यूटिलाइज द अमाइनो एसिड।
नाउ एल्बुमिन से रिलेटेड एक अप्लाइड एस्पेक्ट का मतलब होता है कि पेशेंट में क्या मिल सकता है. देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया. हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया का मतलब कि ब्लड में एल्बुमिन कम हो जाए. ठीक है, लो ब्लड एल्बुमिन लेवल, उसको कहते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया. हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया में क्या होगा कि सिंपल सी बात है, इडिमा हो जाएगा. इसमें क्यों होगा? क्योंकि ब्लड में सॉल्यूट्स कम है, एल्बुमिन कम है. एल्बुमिन एक्ट एज सॉल्यूट एंड अ मेजर सॉल्यूट. सो जब हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड में एल्बुमिन कम होगा, तो ब्लड में सॉल्यूट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वाटर ज्यादा हो गया, सॉल्यूट कम होगा. सॉरी, हाइपोएल्ब्यूमिनिया मींस लेस ऑफ एल्बुमिन. तो अगर सॉल्यूट कम होगा तो ऑब्वियसली वाटर फिर ज्यादा होगा, तो वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, and then this moving out of water will cause edema. ब्लड वेसल के अंदर अगर एल्बुमिन कम हुआ तो सॉल्यूट कम है तो क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वाटर विल मूव आउट from the blood vessel, and these water which are moving out, they will go into the extracellular space, and then they'll get deposited there in the extracellular space. This deposition of water or retention of the fluid in the extracellular space is known as edema. So hypoalbuminemia means decrease in body albumin results in albuminemia. Now hypoalbuminemia होगा कब? लीवर डिजीज मोस्ट कॉमन, क्योंकि लीवर ही आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाता है. तो अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो प्लाज्मा प्रोटीन बनेगी नहीं, तो एल्बुमिन भी बनेगा नहीं. ठीक है. एक्सेसिव सिक्रीशन बाय द किडनी, यानी किडनी अगर आपकी यूजुअली किडनी प्रोटीन्स को सिक्रीट नहीं करती. ठीक है, किडनी सारे सब्सटेंस को एक्सक्रीट करती है, लेकिन प्रोटीन्स दे आर नॉट फिल्टर्ड इन द किडनी, सो प्रोटीन्स आर नॉट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. पर अगर किडनी में प्रॉब्लम हो गई, किडनी का जो फिल्टर है, ठीक है, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ना ब्लड का, तो वो जो ब्लड जिसमें जो सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे फिल्टर आउट होते हैं. पर प्रोटीन्स फिल्टर आउट नहीं होते, बिकॉज प्रोटीन को हमको एक्सक्रीट करना ही नहीं है बॉडी से. प्रोटीन्स दे आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी. ठीक है. पर कुछ कंडीशन में जब किडनी आपकी डिरेंज हो जाती है, काम नहीं करती, जैसे कि कंडीशन जिसे कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ठीक है, उसमें किडनी डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन्स भी फिल्टर आउट होते हैं, एंड देन प्रोटीन्स मूव आउट ऑफ योर बॉडी बाय द यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से प्रोटीन लॉस्ट होती है. तो व्हेन एक्सेस सिक्रेशन बाय द किडनी हो जाए किसी डिजीज कंडीशन में, तो आपको प्रोटीन लॉस होगा. मैल एब्जॉर्प्शन, यानी कि आप प्रोटीन आपकी बॉडी यूटिलाइज ही नहीं कर रही है, खाने से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. मैल न्यूट्रिशन, आप खाना नहीं खा रहे हैं सही से. बर्न में होता है कि अगर बर्न हो रहा है आपको, तो उसमें प्रोटीन्स जल जाते हैं, तो प्रोटीन का लॉस हो जाता है उसमें. ठीक है. So these all condition may cause hypoalbuminemia, and this may result in edema. Now coming to second plasma protein, which is known as globulin. ठीक है. So globulins are of 4 type, और ये ग्लोबुलिन जो है वो एल्बुमिन से थोड़ा बड़े साइज का होता है, तो इस पे आपको उतना साइज पे जाने की जरूरत नहीं है. सो ग्लोबुलिन्स देयर आर 4 टाइप: अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन. ठीक है, 4 ग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसमें गामा ग्लोबुलिन जो है वो लीवर में नहीं बनता. रेस्ट ऑल ऑफ द ग्लोबुलिन्स दे आर प्रोड्यूस इन द लीवर. ठीक है. ग्लोबुलिन अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन की बात करें हम, तो दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, whereas gamma globulins they are synthesized in the plasma cell and B cell of the lymphoid tissue. ठीक है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम बोलते हैं इनको, उनके सेल्स और बी सेल्स, उनके बी सेल्स और बॉडी में मॉडिफाइड बी सेल्स होते हैं जिनको प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं, वो सिक्रीट करते हैं गामा ग्लोबुलिन. एंड गामा ग्लोबुलिन इज बेसिकली द एंटीबॉडी. ठीक है, जो हम एंटीबॉडी नॉर्मली बात करते हैं ना, अभी कोरोना में बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी बनी नहीं बनी, एंटीबॉडी आ गई, so these antibodies are gamma globulin. और किसी भी इन्फेक्शन में, ठीक है, क्रोनिक का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया ना क्रोनिक वर्ड, क्रोनिक का मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी बहुत दिन से चलता हुआ. क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब बहुत पुराना, बहुत दिन से चलता हुआ इन्फेक्शन. इसी का कॉन्ट्रास्ट होता है एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि बहुत कम टाइम का छोटा इन्फेक्शन. ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्रोनिक इन्फेक्शन में, क्रोनिक लीवर डिजीज में,
ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज लिखे में, इन सब में एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू अल्फा ग्लोबुलिन्स। अल्फा ग्लोबुलिन्स भी दो के तरह के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, आपको ज्यादा उनके डिटेल में नहीं जाना है, बस एक एक एग्जांपल याद कर लें। अल्फा ग्लोबुलिन का एक एग्जांपल है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 फीटोप्रोटीन, और अल्फा 2 का है हैप्टोग्लोबुलिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, so alpha 1 antitrypsin and alpha 1 phytoprotein, they are alpha 1 globulin। ठीक है, बस एक एक एग्जांपल इनके याद रख लें तो सही रहेगा, आपको पता चलेगा कि आपको and alpha 2 is the haptoglobulin and ceruloplasmin। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता क्या है? दे आर सिंथेसाइज्ड बाय हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स का मतलब होता है लीवर सेल। ठीक है, हिपैटो refers to liver and cytes refers to cell, so hepatocyte means liver cell। so alpha 1 antitrypsin, they are secreted by the liver cells as well as the macrophages। और एंटीट्रिप्सिन, जैसे इसका नाम देख रहे हैं, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, एंटीट्रिप्सिन मतलब ट्रिप्सिन के अगेंस्ट वर्क करता है, सो इट इनहिबिट्स ट्रिप्सिन प्लस अदर एंजाइम्स लाइक इलास्टेज। ठीक है, सो ये एंजाइम्स जो होते हैं ना, ट्रिप्सिन, इलास्टेज और प्रोटीएजेस, ये प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। तो अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बॉडी में आपके कम हो जाएगा तो एक डिजीज होती है, वो कहलाती है एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा में लंग के एल्वेलाई दे कोलैप्स, दे आर डिग्रेडेड एंड दे कोलैप्स। तो डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन रिजल्ट्स इन अ डिजीज कॉल्ड एम्फाइसिमा। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग रिड्यूसेस द लेवल ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सो एम्फाइसिमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं सिगरेट स्मोकर्स में। ठीक है, सेकेंड अल्फा 1 ग्लोबुलिन, जो अल्फा 1 ग्लोबुलिन का एग्जांपल था वो था हैप्टोग्लोबुलिन। सॉरी, नॉट अल्फा 1, हैप्टोग्लोबुलिन वाज अल्फा 2 ग्लोबुलिन। सो हैप्टोग्लोबुलिन प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन द किडनी। हीमोग्लोबिन के लॉस को प्रिवेंट करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद अल्फा 2 ग्लोबुलिन एक और पढ़ाया था आप लोगों को, उसका नाम था सेरुलोप्लाज्मिन। सो ये कॉपर कंटेनिंग होता है। ठीक है, और ये इसकी कमी की वजह से, सेरुलोप्लाज्मिन की कमी की वजह से एक डिजीज होती है, विल्सन्स डिजीज कहलाती है, जिसमें एक्सेसिव कॉपर एक्युमुलेट हो जाते हैं बॉडी टिश्यू। नाउ कमिंग टू बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन के भी आप एक दो प्रोटीन्स याद रख लें, जैसे कि ट्रांसफेरिन। नाउ ट्रांसफेरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो आपको याद रखना है, आगे भी आपके काम में आएगा, इसको याद रखेंगे तो। ट्रांसफेरिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आयरन, ट्रांसफेरिन आयरन ट्रांसफेरिन के साथ कंबाइन करता है और फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में मूव करता है। आप जो खाना खा रहे हैं उससे जो आयरन आ रहा है, वो इंटेस्टाइन में आपके वहां से आयरन निकल रहा है। नाउ फ्रॉम देयर इट कंबाइंस विद दिस प्रोटीन ट्रांसफेरिन, एंड देन थ्रू ट्रांसफेरिन इट इज मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ट्रांसफेरिन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द आयरन। ठीक है, another beta globulin very important is C-reactive protein। C-reactive protein is a protein that increases during inflammation। आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन पता है क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? The immune response of body। स्वेलिंग विद पेन लिखा है जिया ने। ठीक है, कई सारे फीचर होते हैं इन्फ्लेमेशन के, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, और बताओ, 5 कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के। redness, accumulation of blood, swelling, pain, increase in temperature, redness and loss of function of that area। ठीक है, डोलर, कैलर, ट्यूमर, रूबर एंड
फंक्शियो लॉस कहते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो दीज आर 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। यू हैव इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज कैलर. You have increase in redness, that is rubor. You have swelling, that is tumor. And then you have pain, that is dolor. And then you have loss of function. Okay, heat, pain, redness, swelling and loss of function. They are the 5 cardinal signs of inflammation. तो आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये प्रोटीन जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, इट विल इंक्रीज, ठीक है। कोरोना इन्फेक्शन में भी एक कॉमन फाइंडिंग ये मिलती थी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज करता था बॉडी में, और अगर किसी का सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज्यादा इंक्रीज किया हुआ था तो उसको कहते थे कि ये मतलब खराब कंडीशन है इसकी, कोरोना इन्फेक्शन जो है इसके अगर ज्यादा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है इसके बॉडी में। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इज अ प्रोटीन दैट इंक्रीजेस व्हेन योर बॉडी इज हैविंग इन्फ्लेमेशन। अगर ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा तो ज्यादा सी रिएक्टिव प्रोटीन होगी बॉडी में। Then we have the gamma globulin. Gamma globulins, they are immunoglobulin, जिनको हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लोबुलिन जो है ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी है। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल एंड टू सम एक्सटेंट बाय बी लिम्फोसाइट्स ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ऑफ द लिम्फॉइड सिस्टम में जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो होते हैं। So these gamma globulins, they play a very important role in the defense mechanism of the body. और ये 5 तरह के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD and IgE, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है इसमें वो IgM होता है, तो आप याद कर सकते हैं M stands for मेगा। M मतलब IgM में M का मतलब मेगा नहीं है, बट मैं करो मेगा स्टार्ट्स विद M, तो आप याद रख सकते हैं कि IgM इज द लार्जेस्ट, और सबसे ज्यादा होता है IgG, ठीक है। G स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट, सो इसलिए IgG सबसे ज्यादा है आपके बॉडी में। हाँ, इन द प्रीवियस स्लाइड इज रिटन CRP इंक्रीजेस ओनली इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है कि द लेवल इंक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज्यादा होता है। इफ इट इज रिटन आई विल confirm this, ये मैंने ही लिखा होगा शायद बुक से, तो आई विल कंफर्म दिस, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वायरल इन्फेक्शन। बेसिकली ये इन्फेक्शन रिलेटेड है नहीं, ये इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। आपके बॉडी में जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा ये इंक्रीज करेगा, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। इट्स नॉट दैट वायरल इन्फेक्शन में राइज नहीं करता है, वायरल इन्फेक्शन में भी करता है, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा करता है। तो कभी कभी इसको यूज करते हैं, नॉट इन कोरोना वायरस कंडीशन, बट कह रहे हैं कभी कभी इसको यूज करते हैं कि जैसे मेनिंजाइटिस हो रही है तो वायरल है या बैक्टीरियल है, ये देखने के लिए करते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा राइज करता है CRP। नाउ द थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन विच इज नोन एज फिब्रिनोजन एंड इज आल्सो नोन एज द क्लॉटिंग फैक्टर 1। क्लॉटिंग फैक्टर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग मैकेनिज्म तो उसमें देखेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर बहुत सारे होते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर 1 इज फिब्रिनोजन, ठीक है। इसका काम क्या है, इट इज कन्वर्टेड बाय थ्रोम्बिन इनटू फिब्रिन एंड देन इट फॉर्म्स द मेश वर्क। फिब्रिन, थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, एंड देन मेनी फिब्रिन दे कंबाइन टुगेदर। फिब्रिन्स एक थ्रेड की तरह होते हैं, ठीक है। फिब्रिनोजन को थ्रोम्बिन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन थ्रेड की तरह होते हैं। बहुत सारे फिब्रिन फिर आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द क्लॉट। सो क्लॉट इज फॉर्म बाय द फिब्रिन मेश वर्क। सो फिब्रिनोजन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द हीमोस्टेसिस पार्ट, ठीक है, कि अगर फिब्रिनोजन नहीं होगा या कम होगा तो आपके बॉडी की क्लॉटिंग फंक्शन जो है वो हैम्पर्ड होगी, ठीक है। जैसे एक कंडीशन होती है एफिब्रिनोजेनीमिया, यानी इसमें आपके बॉडी में फिब्रिनोजन होता ही नहीं, जेनेटिक डिफेक्ट इन फिब्रिनोजन फॉर्मेशन। सो ब्लड क्लॉटिंग इज हैम्पर्ड इन दैट, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है एफिब्रिनोजेनीमिया में, क्योंकि फिब्रिन है ही नहीं, फिब्रिन है ही, एफिब्रिनोजन है ही नहीं, फिब्रिनोजन है नहीं तो फिब्रिन नहीं बनेगा, फिब्रिन नहीं बनेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, बिकॉज क्लॉट इज बेसिकली फिब्रिन मेश वर्क। बहुत सारे फिब्रिन आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो वो एक ब्लॉकेज बना देते हैं, जो आर्टरी में जहां भी कट है वहां पे जाके वो पूरे उस कट को ब्लॉक कर देते हैं, तो ब्लड बाहर नहीं निकलता। तो जब फिब्रिनोजन रहेगा नहीं तो फिब्रिन नहीं रहेगा तो क्लॉट नहीं बन पाएगा। सो देयर विल बी एक्सेसिव ब्लीडिंग इन दीस कंडीशंस, फिब्रिनोजेनीमिया कंडीशन।
ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। ठीक है, आप कभी भी लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह कराएंगे या देखेंगे तो लीवर फंक्शन टेस्ट में टोटल सीरम प्रोटीन्स दिखाते हैं कि कितना प्रोटीन है, उसमें एल्बुमिन कितना है, ग्लोबुलिन कितना है, फिर एक रेशियो दिखाते हैं एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। So this is simply amount of albumin to amount of globulin. तो नॉर्मल रेशियो इज 1.7:1 एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। ठीक है, डिक्रीज कब कब होता है ये, जब एल्बुमिन डिक्रीज कर जाए विदाउट एनी डिक्रीज इन ग्लोबुलिन, यानी कि सिर्फ एल्बुमिन डिक्रीज कर रहा है, ग्लोबुलिन नहीं कर रहा है, तो आपका न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल रेशियो डिक्रीज कर जाएगा सीवियर लीवर डिजीज में, क्योंकि ग्लोबुलिन को लीवर नहीं बनाता है, ग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल बनाती है। तो लीवर में अगर डिजीज है तो सिर्फ एल्बुमिन का प्रोडक्शन हैम्पर होगा, ग्लोबुलिन का नहीं होगा। सो देयर विल बी डिक्रीज इन एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। अगर आपको एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो डिक्रीज मिल रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लीवर डिजीज। ठीक है, इंक्रीज कब हो सकता है, जब ग्लोबुलिन डिक्रीज कर जाए तो इंक्रीज हो सकता है, या कि इन्फेक्शन के केस में, इन्फेक्शन के केस में ग्लोबुलिन आपका डिक्रीज हो सकता है। हालांकि इनिशियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन में ग्लोबुलिन इंक्रीज करेगा क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाएगा, बट लेटर ऑन क्रोनिक इन्फेक्शन में जब आपके एंटीबॉडी के नंबर्स घट जाएंगे, बहुत सारे एंटीबॉडी बने, बहुत दिन से एंटीबॉडी बन रही है, तो वो घट सकती है लेटर ऑन। ठीक है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन में आपको ये सॉरी ये इंक्रीज ग्लोबुलिन की बात हो रही है ना, ये एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो डिक्रीज की, मुझे एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो इंक्रीज की बात कर रहा था। जब एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो डिक्रीज हो सकता है दो वजह से, या तो एल्बुमिन डिक्रीज हो जाए या ग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाए। तो ग्लोबुलिन इंक्रीज होगा कब, या तो इन्फेक्शन में होगा या इन्फ्लेमेशन में होगा। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन में, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है क्रोनिक, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन में उल्टा भी हो सकता है, आपको ग्लोबुलिन डिक्रीज भी मिल सकते हैं बिकॉज दे ऑल ग्लोबुलिन्स आर कंज्यूम्ड, ये कहते हैं। ठीक है, नियोप्लेजिया का मतलब होता है कैंसर, कैंसर में भी आपको ग्लोबुलिन इंक्रीज मिलेगा। तो इन कंडीशन में आपको एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो डिक्रीज मिल सकता है। ठीक है, ये बताइए, चलिए पीजी एंट्रेंस का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज नॉट इन्वॉल्व इन आयरन होमोस्टेसिस। आयरन में किस प्लाज्मा प्रोटीन का रोल नहीं है? सो हैप्टोग्लोबुलिन का है, क्योंकि हैप्टोग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके स्टोर करता है, हीमोग्लोबिन आयरन बाइंडिंग करता है। ट्रांसफेरिन का डायरेक्ट है, क्योंकि ट्रांसफेरिन आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। फेरेटिन भी आयरन को कंबाइन करके रखता है। सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को करता है। सो सेरुलोप्लाज्मिन इज द वन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन आयरन हेमोस्टेसिस। ठीक है, सो वी हैव द सेरुलोप्लाज्मिन। ये बताइए, चलिए सबने सी कहा है, लेट सी, सी इज द आंसर, बिकॉज दे डोंट इंक्रीज। प्लाज्मा प्रोटीन जब डिक्रीज होता है तो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तब इडेमा होता है, फ्लूइड बाहर निकलता है। सो they don't increase the capillary permeability, they decrease the capillary permeability. So the answer is C. They perform all the function, osmotic force exert करते हैं वो, buffering action होता ही है, और body defense mechanism वो करती हैं through globulin. ठीक है, so that's all for today. In the next class we'll talk about red blood cell. ठीक है, RBC की बात होगी. That's all for today. Thank you. 10 मिनट है आपके पास नेक्स्ट क्लास से पहले, 10 मिनट तक आप रिलैक्स कर लें।